Hello, friends. Welcome to the platform of Darshanik IAS. This is Akshay Kadam. So, guys, in this lecture, I'm going to discuss with you one of the important topic that UPSC asked in essay paper. That is, forest are the base case studies for economic excellence. So, guys, as you have must have gone through my previous recordings. Okay, here I am in next 15-20 minutes, guys. I'm going to discuss with you जो यूपीएससी ने पुराने टॉपिक्स पूछे ऐसे पेपर्स में उनका स्ट्रक्चर एंड कंटेंट okay that we are going to discuss. Okay, so in which we are going to discuss what to write in your essay. So today's topic, as I said, is the forest are the best case studies for economic excellence. Okay, so this was the topic, guys, was asked by UPSC. Most of the students, guys, wrote this essay. एंड मैंने एक रिकॉर्डिंग जिसमें मैंने सारे डूज डोंट्स की गाइडलाइंस दी थी, उस टाइम मैंने आपको एक टॉपिक एक बात की थी कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो ऐसे पेपर में स्टूडेंट्स करते हैं, दैट व्हाट यू कॉल इज अ मिसप्लेस्ड essay. Okay, totally out of focus essay. Now what happens, guys, in general, like out of two essay papers combined, both, out of 250, if you are getting 70-80 marks, around 90 even, that means in every paper you are just getting close to 40, 35, 30. So out of 125, if you are getting only 35-40 in your essay paper, then understand, guys, you have done something big blunder. पूछा कुछ था और लिखा कुछ है. You have ended up writing totally out of focus. तो इस तरह से मिस रिप्रेजेंटेड एसे मैं जो बोलता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट ने यूपीएससी में ये एसे लिखा. Okay, but instead of focusing on what is asked or proper interpretation of the essay, okay, they ended up discussing all other things about the topic. Okay, so that's why, guys, I am a faculty for UPSC in Khan study group. I've been teaching for almost 8-9 years now for UPSC. So there, guys, when I take SAK classes, first class I only focus on this part to where I discuss the UPSC's previous year topics, that basic interpretation. So interpretation, guys, understanding is very careful. So be very you need to be very precise while interpreting the essay topics. Now, why I'm saying, because in this essay topic, forests are the base case studies for economic excellence. Most of the students ended up writing what are the inputs from a forest for India's ecosystem, economic ecosystem, and how we can develop our economy more by utilizing forest resources, forest reserves, or whatever that forest related ecosystem that we have. But this was not the essay, guys. Essay was totally different. Essay was asking you what lessons you can learn. फॉरेस्ट से ऐसी कौन सी चीजें हम सीख सकते हैं, ओके, जो हमें काफी मदद करेगी हमारी इकोनॉमिक को और अच्छा बनाने में. तो फॉरेस्ट एज अ केस स्टडी, ओके, कि उसको स्टडी करके हमें कौन सा लेसन मिलेगा, ना कि वो फॉरेस्ट से इनपुट क्या लेना है इकोनॉमी के लिए, ओके, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, बट फॉरेस्ट को पूरा स्टडी करके फॉरेस्ट किस तरह से खुद को मैनेज करते हैं, उसी तरह से हाउ वी कैन मैनेज आवर इकोसिस्टम. दैट वाज द एसे. सो गाइज, in the essay you should be first beginning with, as I told you, introduction. Then after introduction provide the outline of the essay. So फिर outline of the essay में आप total flow दोगे essay का. So in this essay first we will discuss, okay, what is economic excellence, how economic excellence is measured today. Then in the essay we will go on discussing that what are the problems, okay, this measure of economic excellence is creating for the society, okay, or for our ecosystem or economic challenges to the population it is generating. And then what lessons, different lessons that we can learn by looking at the forest as a case studies, and what solutions, then how we can those lessons we can implement into our economic system. Okay, so this is what entire outline of the essay you can give. So आपका introduction, then entire outline of the essay, okay, and then go to the main body. Now introduction में, guys, यहाँ पे आपको ये अपना anecdote लिखो कि one day I was traveling or on a picnic tour or so on, या कुछ इस तरह से लिखो कि one day I was there was one guy in Mexico. उसकी एक स्टोरी कि उसने पूरा एक क्या कहते हैं उसे, एक आइस बॉटल में, बड़े आइस बॉटल में
उसने एक दो चार प्लांट, थोड़ा सैंड, वाटर, थोड़े फर्टिलाइजर्स, केमिकल डाल के वो पूरा सील कर दिया, और 20 साल बाद भी इट फुल्ली ग्रोन और वैसे ही था. नो एक्सचेंज फ्रॉम इनसाइड आउट अदर देन एनर्जी. It was self-sustaining. So this example shows that how ecological systems, forests are self-sustainable. And so in this essay, we will consider why forests are the best case studies for economic excellence. इस तरह से आपका intro हो गया. Then go into the main body. Same way आप खुद के इसमें भी लिख सकते हो कि when I was traveling through a city, there was lot of garbage created by the people or so on. एटसेट्रा. आप कंपेयर करो आज क्या क्या डिजास्टर क्रिएट कर रहा है हमारा इकोनॉमी, पोल्यूशन और सो ऑन. एंड व्हेन आई वेंट टू अ टूरिस्ट स्पॉट, ओके, to Konkan region, where there is so much of greenery, no every waste that trees has created, animals have created, is being reutilized. They don't produce things that they can be recycled, like plastic waste, etc. And that's brought to my mind, okay, that actually forests are the great teacher, great educator for our economy, and we should learn a lot from the forest to develop our economy. इस तरह से फिर यू एस्टेब्लिश दे इसे. सो इंट्रो का जो बेसिक पर्पज मैंने बताया था कि इसे को एस्टेब्लिश करना, क्या यस दिस इज द कंसर्न इन फ्रंट ऑफ द इंडिया, इन फ्रंट ऑफ ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड, कुछ भी तरीके से या कुछ करंट रिलेटेड से. तो आपने वो एस्टेब्लिश किया कि यस फॉरेस्ट से लेसन लेना जरूरी है बिकॉज दिस इज द इशू. नाउ देन यू प्रोवाइडेड आउटलाइन, देन गो ऑन डिस्कसिंग डेफिनेशन पार्ट. तो डेफिनेशन पार्ट में यहाँ पे एक ही कीवर्ड है जिसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्सेलेंस. व्हाट आर द parameters or how we measure economic excellence, okay, how it is measured. So discuss how economic excellence is measured today. तो उसके क्या क्या पैरामीटर्स है. तो सो एक वर्ड में जितना मल्टी डायमेंशनल हो सके, जितने ज्यादा शो योर नॉलेज, पोर आउट एंटायर योर इकोनॉमी के पेपर में जो भी पढ़ा था. सो हाउ वी मेजर इकोनॉमिक एक्सेलेंस टुडे. सो जीडीपी, ग्रोथ रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, concentration and distribution of wealth, equity, अंत्योदय, okay, how much equally we are distributed wealth. We are not creating or islands of prosperity in oceans of poverty, or how much people we shifted out of from below poverty line into middle class. सो ये सारी चीजें. देन कितनी आपकी इकोनॉमी स्पेशलाइज्ड है, लाइक सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन, जेनरिक ड्रग इंडस्ट्री, इस तरह से, या जैसे जापान, कोरिया हार्डवेयर के बारे में, तो वो भी डिफाइन होता है. देन आपका सप्लाई चेन रेजिलियंस, ओके, हाउ मच योर सप्लाई चेन इज रेजिलियंट, ओके, फ्री फ्रॉम शॉक. ये भी इकोनॉमी का एक पैरामीटर है. अब यूक्रेन रशिया का वॉर जो हो चुका है और इंडिया का शेयर मार्केट गिरा था, तो ये जो सप्लाई चेन रेजिलियंस बिल्ड करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड जीडीपी एंड ट्रेड, ओके. तो वर्ल्ड जीडीपी में भी इंडिया का शेयर कितना है, वर्ल्ड ट्रेड में कितना शेयर है, इससे भी कंट्री का इकोनॉमिक एक्सीलेंस मेजर किया जाता है. देन कितना आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, ओके, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसके बारे में भी थोड़ा लिखना. एंड क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स, कितना आपकी इकोनॉमी हाईटेक प्रोडक्ट्स बनाती है. सो दीज आर द पैरामीटर्स, ओके. 10-12 लिखे, 100 एक वर्ड हो जाएंगे आपके कि दिस इज हाउ वी मेजर इकोनॉमिक एक्सेलेंस. तो 50 एक वर्ड में इंट्रो, 50 वर्ड में आउटलाइन, 100 एक वर्ड का ये इकोनॉमिक एक्सेलेंस का डेफिनेशन आपने डिस्कस किया. अब इसके बाद गाइस, ओके, गो ऑन कि ये ऐसे में तो हम फॉरेस्ट से क्या लेसन सीखेंगे वो आगे आपको देना ही है. लेकिन ये टॉपिक क्यों पूछा है, क्योंकि ये जो पैरामीटर्स है इकोनॉमिक एक्सेलेंस के, इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ओके. तो फिर वो भी डिस्कस करना, तो और ऐसे एस्टेब्लिश हो जाएगा कि ऐसे इकोनॉमिक एक्सेलेंस मेजर किया जा रहा है और उसकी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, ओके, या हो रहे हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए आगे फॉरेस्ट से क्या सीख सकते हैं. तो देयर विल बी अ प्रॉपर फ्लो इन योर एसे. तो पहले डिफाइन व्हाट इज इकोनॉमिक एक्सेलेंस, देन गो ऑन डिस्कसिंग ड्रॉबैक्स, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय modern economy. So discuss the drawbacks, problems because of considering these as a parameter of economic excellence. क्या क्या चीजें हो रही है. तो वी आर नॉट कंसिडरिंग ह्यूमन वेलफेयर, वी आर नॉट कंसिडरिंग निगेटिव एक्सटर्नैलिटीज एक्सेट्रा, तो उनको ही डिस्कस करना है. अब ऐसे फॉरेस्ट के बारे में तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले आपको डिस्कस करना चाहिए, दैट इज ब्रीफ डिस्कशन ऑन निगेटिव एक्सटर्नैलिटी on society and environment, कि कैसे it is creating negative externality on society, how it is creating negative externality on environment, okay. तो guys ये negative externality कैसे create कर रहा है environment पे, pollution, then waste that can't be recycled, या ऐसे elements उनका बहुत उनका डिस्ट्रक्शन होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम पीरियड लगता है. तो ये सारी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर राइज, ये सारे प्रॉब्लम्स.
The negative externality on society in the form of increased materialism, consumerism, resource exploitation, फिर आपका करप्शन, वो भी एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है सोसाइटी पे. Then pollution etc, global warming, resource exploitation. Then middle income trap. To great extent आज का जो इकोनॉमी है, we are in middle income trap. अब ये middle income trap क्या है, I can't explain here in short, so आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा और वहां से उसके बारे में थोड़ा जान लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. उसके बारे में भी एक आध ऐसे टॉपिक में ऐड करूंगा दैट वी विल डिस्कस. देन लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी. ओके, कि व्हाई these parameters are not sustainable. ओके, वी आर इंक्रीजिंग आवर जीडीपी ग्रोथ रेट, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ रेट करके जाना कहां पे, व्हेन आवर एनवायरमेंट इज गेटिंग डिग्रेडेड, आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गेटिंग हैम्पर्ड, ये सारी स्ट्रेस, ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज हो रहे. वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम द सॉइल, जो टागोर ने आइडिया दी थी, रॉबरी ऑफ द सॉइल. ओके, देन सिटीज आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द नेचर. ओके, आज की जो जनरेशन है, दूध कौन देता है, तो दूध वाला भैया. ओके, दे डोंट इवन नो इन सिटीज दिस बेसिक कनेक्ट कि ट्रीज कहां पे उग रहे. मोस्ट ऑफ द जानवर जो लोगों ने देखे नहीं. ओके, जो विलेज लाइफ में यू आर कनेक्टेड विद द नेचर, यू आर कनेक्टेड विद द सॉइल, ओके, यू आर कनेक्टेड विद द फ्लोरा एंड फाउना. वो इकोनॉमिक एक्सीलेंस जो अर्बनाइज सेंटर्ड है, मटेरियलिज्म सेंटर्ड है. ओके, ये जो हम नेचर से दूर जा रहे हैं, उसकी वजह से हेल्थ इंपैक्ट, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, सारे वो भी डिस्कस करना. एंड देन आइडिया ऑफ ग्रीन जीडीपी. ओके, कि हम ये जो जीडीपी कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फॉरेस्ट इटसेल्फ टू द इकोनॉमी. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. तो ये बेसिक पैरामीटर पे और 101 वर्ड लिखो, तो आपका 301 वर्ड तक एसे का प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हुआ है. अब नेक्स्ट 500-600 वर्ड, ओके, सो टिल 900 वर्ड्स तक. तो नेक्स्ट 600 वर्ड्स फोकस ऑन द कोर एस्पेक्ट. अब यहां पे मैंने जो बोला, डोंट राइट मिसप्लेस एसे. Essay is not about forest input to the ecosystem. So discuss what lessons can we learn from the forest to improve our economy. Do not discuss contribution of forest to the economic development. ओके, ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हैंड दैट रॉक द क्रैडल में मैंने जो बताया था कि डोंट डिस्कस कि विमेन के इश्यूज क्या है. एसेज ऑन विमेन्स के कौन से इश्यूज है, हैंड्स जो क्रैडल को इंपैक्ट करेंगे. तो वो आपको टू द पॉइंट जो पूछा है वही बस लिखना है. ओके, सो stay and write all your points extremely to the point. Okay, यहाँ पे हेडिंग थोड़ा मैं रिप्लेस करना भूल गया. सो फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, जो टॉपिक हम देख रहे हैं. तो फिर क्या लेसन आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 10-12 मुझे जो लगा वो लेसन लिखे. आप भी कोई कुछ ऐड कर सकते हो, जितनी मेरी सोच पहुंच पाई मैंने वो पॉइंट्स निकाले हैं. तो आई होप ये पॉइंट आपको काफी हेल्प करेंगे. तो यही पॉइंट को यूज करके आप ऐसे लिखना. सो एक्सप्लेन हाउ डेंसर फॉरेस्ट ग्रो टॉलर and how competitive economies can improve the productive quality and economic mobility and velocity of money. तो गाइज आपने इकोलॉजी में सिंपल कंसेप्ट पढ़ा होगा, जितना फॉरेस्ट डेंस है, ओके, उतना ज्यादा ऊंचा वो ग्रो करता है. तो आपकी इकोनॉमी में भी, ओके, जितना कंपटीशन ज्यादा होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्ट क्वालिटी और ये सारी चीजें ज्यादा इंप्रूव होगी. ओके, इकोनॉमी की मोबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी. इवन वेलोसिटी ऑफ द मनी विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, इफ यू हैव लाइक फॉरेस्ट अ कंपिटिटिव इकोनॉमी, multiple players, not oligopoly or monopolies या crony capitalism, but rather open market competition, fair competition, okay, like the forest. तो जितना open market and fair competition, the better your economy will be. तो forest ने क्या सीखा, उसको पहले एस्टेब्लिश करो 50 वर्ड्स में और फिर 20-25 वर्ड्स में, और फिर इकोनॉमी में कैसे वो इंप्लीमेंट होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट, तो 50-50 वर्ड पे अलग अलग डायमेंशन लिखने. मैंने यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डायमेंशन दिए. तो 7 डायमेंशन पे आपको वो टॉपिक एड्रेस. देन गाइज नेक्स्ट इज यू कैन एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट डाइवर्सिटी लीड्स टू रेजिलियंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ओके, अब आपको पता है बेसिक इकोलॉजी में दैट टुंड्रा का जो बायोम है, या टुंड्रा का ये साइबेरियन जो फॉरेस्ट है, कोनीफेरस, इसमें यूनिक वेजिटेशन, एक ही यूनिक वेजिटेशन होता है. ओके, डाइवर्सिटी बहुत कम होती है. दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम. लेकिन आपके वेस्टर्न घाट्स वगैरह, ये जो है, या इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के प्लांट्स, ट्रीज ग्रो करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट गाइज, जितना डाइवर्सिटी ज्यादा, उतना उस इकोसिस्टम को हम रेजिलियंट मानते हैं. ओके, सो जितना फॉरेस्ट डाइवर्स, इट इज मोर रेजिलियंट. सेम वे फिर हमारी इकोनॉमी जितने डाइवर्स प्रोडक्ट बनाएगी, ओके, डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी, इट विल मेक योर इकोनॉमी मोर रेजिलियंट. ओके, टू सेक्टोरल इकोनॉमिक शॉक,
तो कोई एक सेक्टर पे कोई इकोनॉमिक शॉक आ गया, देन स्टिल आवर इकोनॉमी विल बी एबल टू सर्वाइव। तो अभी जो हमारी इकोनॉमी सॉफ्टवेयर सेंटर्ड है, इट इज वेरी फ्रजाइल एंड कैन क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हम कितना ज्यादा इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं, ओके, और कितनी ज्यादा रेजिलिएंट बना सकते हैं, वी विल बी एबल टू विथस्टैंड द सप्लाई चेन शॉक्स और सो ऑन। इसमें आप फिर एग्जांपल में लिख सकते हो पिक्स क्राइसिस जो हुआ था पुर्तगाल आइलैंड, ग्रीस, स्पेन, इन कंट्रीज में, जो लार्जली ये कंट्रीज की इकोनॉमी टूरिज्म, होटलिंग एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे चल रही थी, और 2009 के रिसेशन में टूरिस्ट ने आना बंद किया और पूरे इकोनॉमी वेंट इनटू अ बैंक्रप्सी। ओके, इसलिए हाउ डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी मेक्स इकोनॉमी रेजिलियंस। तो कोई एक एग्जाम्पल भी यूज करो इसको जस्टिफाई करने के लिए, तो वो भी एक डायमेंशन आप लिख सकते हो। देन एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट ग्रो इन रिस्पॉन्स टू लोकल क्लाइमेट एंड लैंडस्केप। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने ये भी देखा है कि फॉरेस्ट लोकल लैंडस्केप के हिसाब से ग्रो करते हैं। टुंड्रा का फॉरेस्ट अलग होगा, साइबेरिया का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा, वेस्टर्न घाट्स का अलग होगा, कोंकण का अलग होगा, ओके, नॉर्थ ईस्ट का अलग होगा। तो जैसे लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है, फॉरेस्ट उसको अडॉप्ट करता है, लोकल सॉइल, लोकल क्लाइमेट, लोकल ह्यूमिडिटी कंडीशन, टेम्परेचर कंडीशंस, ओके, ये जो सारा है, तो इसको एडजस्ट करके फॉरेस्ट खुद को ग्रो करता है, एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। तो सेम वे इकोनॉमी भी आपकी शुड कंज्यूम एंड हार्वेस्ट एंड प्रोड्यूस्ड, ओके, स्पेशलाइज प्रोडक्ट एज पर द लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। तो जो भी लोकल कंडीशन में अवेलेबल है रिसोर्सेस है, उसको आप कैसे मार्केटाइज कर सकते हो, कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो, दैट यू शुड नो। लाइक फॉरेस्ट, you should grow accordingly. So we should harvest and produce these specialized products as per our local climatic conditions and resource availability. अब ये जो है आपके एग्जाम्पल में मतलब इसका कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट जो लैंडस्केप है उस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में हम कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालने से अच्छा टूरिज्म प्रोमोट करें। फिर अभी हम बहुत सारे ऑयल प्रोडक्ट्स ला रहे हैं इंडिया में, उसका रिफाइनिंग होता है, फिर वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ओके, जो लोकली चीज अवेलेबल ही नहीं। तो इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी की जगह पे व्हाट इज अवेलेबल एट दैट लोकेशन, उसको कैसे हार्वेस्ट किया जाए, ओके, इस पे वी शुड बी फोकसिंग। जैसे केरला का जो एग्जांपल कि वो मॉनसून टूरिज्म करते हैं, सो व्हाट यू हैव, ओके, यू शुड बी एबल टू हार्वेस्ट एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। या महाराष्ट्र में भी गाइस बहुत ज्यादा शिवाजी महाराज के फोर्ट्स है, तो उसका फोर्ट टूरिज्म होता है, एग्रो टूरिज्म होता है, बहुत एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छे हैं, तो सारे इंडिया से लोग आते हैं इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को विजिट करने के लिए, एटसेट्रा। तो जो भी आपके पास एडवांटेज है रिसोर्स के फॉर्म में या इकोनॉमिक कैपेसिटी के फॉर्म में, उसको कैसे आप यूज कर सकते हो। तो फॉरेस्ट से ये लेसन भी हमें मिलता है। देन गाइस, फॉरेस्ट डोंट पोल्यूट, ओके, फॉरेस्ट कभी पोल्यूट नहीं करता, ओके, दैट्स हाउ, सो हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड मिनिमाइज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटी ऑन एनवायरमेंट एंड रन इन अ सस्टेनेबल मैनर। तो जैसे फॉरेस्ट गाइस पोल्यूट नहीं करता, फॉरेस्ट डोंट क्रिएट एनी कोलैटरल ऑन द एनवायरमेंट, okay, rather they whatever they produce they actually recycle. So same way इकोनॉमी की सिस्टम भी ऐसी डेवलप होनी चाहिए कि वेयर वी क्रिएट अ लेस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, कोई ऐसे बाय प्रोडक्ट ना बनाए जो नेचर में पहले से अवेलेबल नहीं है, ओके, या कोई जो रिसाइकल नहीं हो सकते और सो ऑन। फॉरेस्ट जो भी पोल्यूट कर भी देता है, ट्रीज गिरते हैं, लीफ फॉल होता है, सारा रिसाइकलेबल है। सो इट डजंट प्रोड्यूस समथिंग दैट इज नॉट नेचुरली अवेलेबल, कोई अननेचुरल चीजें प्रोड्यूस नहीं करता। सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें ये भी लेसन मिलता है फॉरेस्ट से। तो अंडरस्टैंड क्रक्स ऑफ द एसे गाइस, इट्स नॉट हाउ फॉरेस्ट एक्ट एज अ इनपुट टू इंडिया's इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी, ऐसे इज व्हाट लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट टू मेक आवर इकोनॉमी बेटर, ओके। देन एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट रिसाइकल वेस्ट, ह्यूमस प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड रीजनरेट इनपुट्स, ओके। सो फॉरेस्ट में मैंने अभी जो पॉइंट बताया वो अलग से फिर से लिख देना कि फॉरेस्ट जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है, कोई भी ऐसा नहीं करता जो रिसाइकल नहीं कर सकता, और हर जो वेस्ट की प्रोड्यूस किया उसी को रिसाइकल करके पूरा उसका जो साइकिल्स है आपके, नाइट्रोजन का साइकिल है, ह्यूमस प्रोडक्शन और ब्रेकडाउन होके ह्यूमस का रिसाइकलिंग होता है, ओके। हर वेस्ट प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस हो, दे नो हाउ टू कंज्यूम एंड रिसाइकल एंड कंज्यूम इट बैक, ओके। सो वो खुद के वेस्ट से ही खुद के लिए इनपुट्स रीजनरेट करता है। सेम वे so economy should recycle all its waste byproducts and leave no carbon footprint, okay। तो कोई एक्स्ट्रा कार्बन वो ऐड नहीं करते, जितना एनवायरनमेंट में फिक्स किया उसी को उन्होंने फॉरेस्ट जनरेट करते हैं, और वही सारा फिर से रीयूटिलाइज होके वही सारा वेस्ट रीयूटिलाइज होता है। सो सेम वे गाइस, फॉरेस्ट में द लाइक फॉरेस्ट इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस
and everything they produce it should be able to recycle back. कोई एक्स्ट्रा कार्बन एनवायरमेंट पे ऐड ना करे, कार्बन फुटप्रिंट ना बढ़ाए, कार्बन एक्स्ट्रा कार्बन जो नेचर रिमूव नहीं कर सकता उससे उस कैपेसिटी से ज्यादा, ओके, इट शुड नॉट ऐड। तो ये भी एक लेसन आपको मिलता है इकोनॉमी या फॉरेस्ट से। उसके अलावा एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट अलाउ अदर एनिमल्स, अदर एनिमल लाइफ, फ्लोरा एंड फाउना टू लिव अ डिपेंडेंट लाइफ। ओके, सो फॉरेस्ट जब ग्रो करते तो खुद सिर्फ अकेले के लिए ग्रो नहीं कर रहे, फॉरेस्ट जब ग्रो कर रहे हैं उनके जो बाई प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑल एनिमल एंड फ्लोरा फ्लाउना लाइफ सर्वाइव्स ऑन दैट। ओके, बर्ड्स एनिमल्स उसी को अपना घर बना के पूरी जिंदगी फॉरेस्ट से इंटीग्रेटेड जीते हैं। ओके, तो इकोनॉमी में भी जब हम ग्रो कर रहे हैं, जब फॉरेस्ट अलाउस लाइक अदर एनिमल्स टू सर्वाइव, okay, we should also create our economy, develop our economic products, etc. Okay, not only for human consumption but collaterally create good world for all living species. Okay, humans are not the only species on this planet. So हमारे पास जो भी टैलेंट है, इंफॉर्मेशन या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, we should be able to make it more sustainable for other plants and animals also. Okay, तो फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्री रन कर रहा है आजू बाजू, यू शुड प्लांट लॉट ऑफ फॉरेस्ट, ओके, एंड मेक इट मोर सस्टेनेबल एंड लिविंग फॉर द वर्ल्ड। तो हर या आप जो भी केमिकल्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस करिए, इट शुड नॉट गो एंड पोल्यूट द नेचर, तो रादर इसको कैसे हार्वेस्ट किया जाए, ओके, या जो इकोनॉमी में टैलेंट है, ओके, उसी को यूज करके हाउ वी कैन क्रिएट मच बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल स्पीसीज। हम फॉरेस्ट से ये भी सीखना बहुत जरूरी है। Then explain how big trees support and allow growth of climber plants, orchids, etc. जब बड़े प्लांट ग्रो करते हैं, बहुत सारे गाइज बिग ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, उसके साथ दे प्रोवाइड स्पेस फॉर स्मॉलर प्लांट्स टू ग्रो, दे इवन अलाउड क्लाइंबर्स टू ग्रो ऑन देम, दे अलाउ इवन ऑर्किड्स टू ग्रो ऑन देम। तो उसी तरीके से गाइज फॉरेस्ट जैसे ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स एनिमल्स को, बड़े ट्रीज प्लांट्स, सेम हिसाब से गाइज इकोनॉमी में बिग एंटरप्राइजेज जो है, okay, should support and create the collateral jobs in economy for medium, small, micro enterprises. तो वो लिंकिंग कैसे किया जाए मैक्रो एंटरप्राइजेस का विद द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, और दोनों को इंटरकनेक्ट करके कैसे हम इकोनॉमी को और ग्रो कर सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस इकोनॉमी में बढ़ा के हाउ वी कैन मेक क्रिएट अ मच बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एक्सेल आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये 7-8 पॉइंट याद रखना। ओके, इस पे अगर आप हर किसी पे 70-60 वर्ड लिख कर रहे हो, मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 7 पॉइंट दिए, 7 पॉइंट पे, और आपको भी कोई यूनिवर्सिटी आइडिया है वो भी पॉइंट ऐड करो, लेकिन हर वर्ड पे गाइज आपने 80-70 वर्ड लिखे तो भी आपका आराम से 500-600 वर्ड का कोर आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे हो जाएगा। ओके, एंड देन प्रोवाइड सॉल्यूशंस। अब ये जो सारे हमने डिस्कस किए, ये तो लेसन्स तो फॉरेस्ट से समझ में आ गए। ओके, अब अलग से 100-150 वर्ड में हाउ वी कैन इंप्लीमेंट दैट। ओके, अब यहाँ पे आपको बहुत यूनिक सॉल्यूशन देने पड़ेंगे, ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल कोई भी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन है, कोई इकोनॉमी की कोई एक्टिविटी है, तो कंपलसरी इतने प्लांट्स, ट्रीज आपको प्लांट करने पड़ेंगे। कोई हाईवे या कोई आप ये कर रहे हो तो ट्रीज काट रहे हो कहीं पे, कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स आपको ऐसे ट्रीज लगाने पड़ेंगे। ओके, तो हर कोई चीज आप क्या क्या सोल्यूशन दे सकते हो। ओके, बहुत इनोवेटिव सोल्यूशन, ये जो सारी चीजें बताई मैंने, उसको ऑलिगोपोली क्रिएट ना होने देना, मोनोपोली क्रिएट होने ना देना, उसके लिए क्या क्या सोल्यूशंस, तो ये सारे सोल्यूशन जितने हो सके ऐसे के एंड में देना, एंड देन कंक्लूड कि अगर ये सारे लेसन्स अगे हम इंप्लीमेंट कर पाए और हम इकोनॉमी की एक्टिविटी भी फॉरेस्ट जैसे एक्सेलेंट तरीके से चल पाए, तो फिर दुनिया में क्या बदलाव होंगे, हाउ ग्रेट इट विल बी, हाउ इट विल बी टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। तो ये ऑप्टिमिज्म के साथ you can conclude the part. Okay, so thanks for listening guys, and check out all other my recordings also, they will be of great help to you. Okay, and do share this video with your friends who are interested in UPSC. So thanks for listening guys.